मैनथन स्थित डीवीसी कार्यालय में समक्ष तृणमूल कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। मंत्रिमंडल घटक ने डीवीसी अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के मैनथन स्थित डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कार्यालय के बाहर बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। पिछले कुछ दिनों में झारखंड के कई इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते डीवीसी ने अपने दो प्रमुख जलाशयों मैनथन पर पंचायत से भारी मात्रा में पानी छोड़ा था, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के निचले दामोदर क्षेत्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना के विरोध में पश्चिम बंगाल के कानून श्रम मंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस विधायक मलय घटक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीवीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, जामुड़िया के विधायक हरराम सिंह, उप मेयर अभिजीत घटक, जिला सभापति विश्वनाथ बौरी समेत सैकड़ों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना मंच में बोलते हुए मंत्री मलय घटक ने आरोप लगाया कि डीवीसी अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बिना सूचना दिए हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा, जिससे पश्चिम बंगाल में कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने मांग की कि आगे के डीवीसी प्रशासन किसी भी प्रकार का जल प्रवाह शुरू करने से पहले राज्य सरकार को पूर्व सूचना दे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डीवीसी प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में आवाज बुलंद की। इसकी आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज गुरु आसनसोल। ডেপুটেশনটা সুমন প্রসাদ সিং এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ডিভিসি উনি রিসিভ করেছেন। এই ডেপুটেশনে মূলত আমাদের যে দাবিগুলো আছে সেই দাবিগুলো আপনারা সকলেই জানেন যে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের নেত্রী আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বলে আসছেন যে ম্যানমেড বন্যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের চাষিদের ফসল নষ্ট হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের নদীর পাড় ভাঙছে এবং গ্রামগুলো ডুবে যাচ্ছে। আজকে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে ডিভিসি বারবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে না জানিয়ে হাজার হাজার কিউসেক জল তারা কিন্তু ছেড়েছে এবং সেই ছাড়ার পরেও আজকের দিনে হুগলির খানাকুলে কতগুলো গ্রাম জলে ডুবে গেছে। তার কারণ হচ্ছে ডিভিসি জল ছেড়েছে। এই যে জল ছাড়া একটা সময় যখন ডিভিসি ছিল তখন দামোদর নদীকে বলা হতো বাংলার ত্রাস। সেই বাংলার ত্রাসকে রক্ষা করার জন্য, বাংলার দুঃখকে মোচন করার জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে এই দীর্ঘ 30-40 বছর এখানে কোনো ডিসইনফিল্ট্রেশন হয়নি, অর্থাৎ এখানে কোনো ড্রেজিং হয়নি এবং সেটা স্বীকার করেছে। সেটা সুমন প্রসাদ সিং তিনি কিন্তু স্বীকার করেছেন, হ্যাঁ এটা আমাদের হয়নি এবং এটা আমরা প্রসেস করছি যাতে করা যায়। এর ফলে কি হচ্ছে, বিহার এবং ঝাড়খণ্ড এই অঞ্চলে যখনই কোনো ভারী বৃষ্টি হচ্ছে সেই জল গড়িয়ে এই সমস্ত ড্যামে এসে জড়ো হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই জলটা ছেড়ে দিচ্ছে এবং ছেড়ে দেওয়ার পরে নিম্নবঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গের যে দক্ষিণবঙ্গ, সেই বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গ্রাম যেগুলো নদীর ধারায় আছে সেগুলো কিন্তু বছরে একবার নয়, বছরে 3-4 করে ডুবে যাচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবসময় বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি চাষিদের জন্য ইন্স্যুরেন্স করে দিয়েছেন, কিন্তু তার সত্ত্বেও আমরা দাবি করছি যদি ডিভিসি ছাড়া জলে কোনো ক্ষতি হয় তার ক্ষতিপূরণ ডিভিসিকে দিতে হবে এবং ডিভিসি ছাড়া জলে যদি কোনো প্রাণ যায় অথবা কেউ প্রাণ একটু করে হত্যারও চেষ্টা হয়, কেউ প্রাণ মারা যাওয়ার মতো পরিস্থিতি হয়, তাহলেও কিন্তু এটা ভারতের ফৌজদারি বিধি অনুযায়ী তাহলে কিন্তু এটা দণ্ডনীয় অপরাধ। এটা কিন্তু ডিভিসিকে জানতে হবে এবং ডিভিসিকে আমরা আরো বলেছি যে জল ছাড়ার আগে রাজ্য সরকারকে জানাতে হবে। যদি রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে জল ছাড়েন তাহলে কিন্তু আমরা বারে বারে এরকম ভাবে আপনাদের কাছে অবস্থান করব, ঘেরাও করব এবং এই ডেপুটেশন কর্মসূচি আমরা করব। মানুষের মৃত্যু মিছিল হবে আপনাদের কারণে, এটা আমরা মেনে নিতে পারবো না। স্যার কিতনা জেলা প্রভাবিত কম্পেনসেশনের জন্য আমরা বলেছি যে এই সমস্ত যদি ক্ষতি হয় তাহলে ডিভিসি কে কম্পেনসেশন দিতে হবে, এটা আমরা বলেছি। सर अभी कितना जिला प्रभावित हुआ है? अभी देखिए मोटामोटी बर्धमान, पूर्व, हावड़ा, हुगली, पार्ट ऑफ मिदनापुर, चारों तरफ में पानी चला जाता है। तो हम लोग जिसको साउथ बंगाल बोलता है, साउथ बंगाल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है।
पानी में डूब जाता है, रोड खराब हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके सरकार रोड बनाता है और डीवीसी का पानी से खत्म हो जाता है। जो गरीब आपका चासी लोग है, उन लोग का चास बर्बाद हो जाता है, लेकिन कोई कंपनसेशन डीवीसी नहीं देता। तो ये भी चीज हम लोग बताया, हम लोग इसका रिपोर्ट हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भेजेंगे, जो रिसीव कॉपी है वो भी हम लोग भेजेंगे, उनके बाद उनका निर्देश के लिए हम लोग रहेंगे। अगला परिस्थिति जो होगा, जो निर्देश होगा, हम लोग वैसा यहाँ पर फिर घेराव करेंगे। डीवीसी जितना पानी छोड़ती है वो सेंट्रल वाटर कमीशन, जो एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, उसके एडवाइस पर छोड़ती है। और डीवीआरआरसी के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, जो सीडब्ल्यूसी के डायरेक्टर होते हैं, और डीवीआरआरसी के चेयरमैन मेंबर रिवर मैनेजमेंट सेंट्रल वाटर कमीशन होते हैं। दामोदर वैली रिजर्वायर रेगुलेशन कमेटी में डीवीसी के सदस्य हैं, वेस्ट बंगाल के सदस्य हैं और झारखंड सरकार के सदस्य हैं। पानी छोड़ने के पहले उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। उस प्रक्रिया के तहत पूर्व सूचना जिन जिन विभागों को देना होता है वो दी जाती है। एक सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप भी है और उसमें सारे रिलीज एडवाइस सेंट्रल वाटर कमीशन के आ जाते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वेस्ट बंगाल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुख्य अभियंता भी हैं, झारखंड सरकार के प्रतिनिधि हैं, डीवीसी के प्रतिनिधि हैं। सारे लोगों के पूर्व सूचना रहती है कि कितने अमाउंट डीवीसी के रिजर्वायर से छोड़े जाने हैं। डीवीसी केवल अपने डैम ऑपरेशन से गेट को ऑपरेट करके और जितना भी पानी के अमाउंट को छोड़ने के लिए बताया जाता है उस पानी के अमाउंट को छोड़ती है। इस बार हम लोग कहीं भी किसी भी दिन लगभग 1-2 इक्वेजन को छोड़ करके, जिसमें 70,000 क्यूसेक से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 72,000-75,000 के पास, किसी दिन हम लोग 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं छोड़े हैं। जबकि अप्रैल में जब बैठक हुआ था, जिसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के मुख्य सचिव भी थे, और उसमें यह तय किया गया, उसमें यह बताया गया था कि जो लोअर वैली के जो चैनल है, चैनल कैरिंग कैपेसिटी 1,30,000 क्यूसेक है। और इस बार सीडब्ल्यूसी ने जो भी एडवाइस दिया है वो कभी भी 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा नहीं रहा है। तो पानी पूर्व सूचना के आधार पर छोड़ी गई है और नियमित रूप से छोड़ी गई है। ये सूचना कितनी देर पहले दी जाती है? सूचना का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। 23,000 क्यूसेक तक फ्लड रिलीज नहीं माना जाता है। जैसे ही 23,000 क्यूसेक से अधिक रिलीज करना होता है, उसके 6 घंटा पहले ये सूचना आ जाती है और सूचना जिस जिस प्रशासन तंत्र को देना है वहाँ उसकी प्रति टेलीफोन के ईमेल के माध्यम से या और कोई माध्यम से चले जाते हैं। प्लस एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी चला जाता है। मोरोवर पानी दुर्गापुर बैराज तक पहुंचने में फिर अलग से 12 घंटा लगता है, तो 12 + 6 18 घंटे हो जाते हैं और उसके बाद भी पानी पहुंचने का एक समय लगता है। इसलिए कोई भी पानी जो एक नियम बने हुए हैं उसी नियम के अनुसार से छोड़े जाते हैं। बंगाल सरकार का कहना है कि डीवीसी बांध की सफाई नहीं कर रही है, जिससे कारण पानी धरने की क्षमता दिन के दिन कम होते जा रही है, जिससे कारण पानी छोड़ना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है झारखंड में तो पानी को छोड़ दे रही है, पानी को पकड़ के नहीं रख पा रही है। बांध की सफाई क्यों नहीं कर रही है डीवीसी? बांध की सफाई के लिए केंद्र सरकार से भी तरह तरह की अभी पॉलिसी निर्धारण हो रहा है। यह बताना ज़रूरी है कि अभी कहीं भी डैम के डिसिल्टेशन के बारे में बहुत अधिक उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। हम लोगों ने भी अपने डैम के जो सिल्टेशन हुए हैं उसकी प्रोफाइलिंग कराई गई है। प्लस सिल्टेशन किस तरह का है उसके लिए हम लोग एक निविदा ऑलरेडी निकाले हुए हैं। जहाँ तक फ्लड स्टोरेज की बात है तो उसमें हमारी सिल्टेशन केवल 10 से 14% है। तो फ्लड का कोई भी भाग सिल्टेशन के कारण प्रभावित नहीं हो रहा है। फ्लड जितना रिजर्व स्टोरेज था वो अभी भी वर्तमान है।
चूँकि वर्षा नियमित रूप से और इस बार ज़्यादा हुई है, इसलिए ओवरऑल क्वांटम रिलीज ज़्यादा हुआ है। लेकिन किसी भी मोमेंट पर जितना कैरिंग कैपेसिटी नीचे के चैनल में बना हुआ है, जो कि बंगाल सरकार के द्वारा सूचित की गई थी, उससे करीब हम लोग आधे पर हैं। तो कभी भी किसी भी समय पर सेंट्रल वाटर कमीशन से कोई भी ऐसे एडवाइस नहीं मिले हैं जो 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा है, जबकि कैरिंग कैपेसिटी पिछले की मीटिंग में 1,30,000 क्यूसेक बताया गया है और डीवीसी भी कभी भी 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं छोड़ी है।